Dear students, I welcome all of you into a special video lecture series on a special topic, that is Goods and Service Tax (GST). In earlier lectures, we have already discussed regarding the introduction of GST and basic terms used in GST. It is very important to make classification of basic definitions from the point of view to understand the basic terms used in GST. Further classification of that basic definition is required. So in earlier lectures I had discussed with you regarding the basic term, that is person यानी क्या, पर्सन यानी क्या, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया. एंड सेकंड डेफिनेशन हमने डिस्कस किया बिजनेस यानी क्या. While discussing the meaning of person and business, it is further required to make further classification of that definition of business. It have wide meaning, it have further classifications and some legal provisions which will affect to the law of GST, which will affect to the practice of GST. So according to the GST Act, what are the provisions which is applicable for the definition of business? Which activity is considered as business, which activity is not considered as business? For that purpose, it is required to make further classification of business definition. So in this video lecture, I want to make further classification of basic term business. Business यानी क्या, और business के term को हम और ज़्यादा classify यहाँ पर करना चाहते हैं. मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था रिगार्डिंग पर्सन के डेफिनेशन. जैसे कि मैंने बताया, जीएसटी उस पर्सन को लगता है जो पर्सन कोई बिजनेस चला रहा है और उस बिजनेस के थ्रू वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है. सो पर्सन यानी क्या? पर्सन यानी बहुत सारी अलग अलग बिजनेस एंटिटीज़, अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं और वो बिजनेस एंटिटीज़ को हम पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल यानी सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो वो पर्सन है. अ जॉइंट हिंदू फैमिली, दैट इज आल्सो कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक फैमिली के मेंबर्स जॉइंटली एक बिजनेस को रन करते हैं और जॉइंट हिंदू फैमिली के अंतर्गत वो अपने बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं. अ कंपनी is also included into the definition of person. Company means a organization which is registered as per Company Act 2013. किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाती है और वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर सप्लाई की जाती है तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा. पर्सन के डेफिनेशन में एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एनी कारपोरेट, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ या स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज़, इसके अलावा आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये सभी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड है. सो अकॉर्डिंग टू द जीएसटी एक्ट, देयर मस्ट बी अ पर्सन. पर्सन ने बिजनेस रन करना चाहिए और उस बिजनेस के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जानी चाहिए. सो पर्सन ने बिजनेस रन करना चाहिए तो कौन सी एक्टिविटी को आप बिजनेस कहेंगे और कौन सी एक्टिविटी बिजनेस नहीं है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है. वैसे मैंने आपको पहले बिजनेस के डेफिनेशन के बारे में बताया था कि बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग, और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड बिजनेस. Business may be run with the motive of profit or without motive of profit, as the business may have the object to earn the profit, or maybe business run on no profit no loss situation. Maybe business run in loss situation also. That all activities are also included into the meaning of business. Business may be regular or irregular. It may be run for short term period or it may be run for long term period. That activity is also included into the meaning of business if in short term period any business activities carry on and in that short term period
goods and services supplied by a businessman, then on the value of that goods and services GST is chargeable. So it is very important to make further classification of the definition of business. So let us begin with the small definitions which are well defined into the GST Act, which will help to understand the concept of business. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिजनेस के अंदर 3 टर्म्स इंक्लूड है, ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग. सो ट्रेड यानी क्या? ट्रेड मीन्स बाइंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाइंग ऑफ द गुड्स. अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी गुड्स बाय कर रही है, गुड्स खरीदी कर रही है और वो गुड्स को सेल कर रही है, सो परचेसिंग एंड सेलिंग एक्टिविटी ट्रेड में इंक्लूड है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, हम कई बार अपने आसपास देखते हैं कि कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, कई सारी दुकानों का नाम डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा रखा जाता है. तो वो होलसेल मार्केट से गुड्स लेकर रिटेल मार्केट तक माल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स. और कुछ दुकानदार सप्लायर होते हैं, दे आर सप्लाइंग द गुड्स. तो सप्लाइंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, बाइंग, ये एक्टिविटी ट्रेड के अंतर्गत इंक्लूड होती है. सो ट्रेड इंक्लूड्स बाइंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाइंग ऑफ द गुड्स. इफ एनी पर्सन परचेज गुड्स एंड सेल द गुड्स इन द सेम फॉर्म इज कॉल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी. अगर कोई व्यक्ति माल को परचेज कर रहा है और वो गुड्स उसने सेल किया है इन द सेम फॉर्म, तो उस एक्टिविटी को हम ट्रेड एक्टिविटी कहेंगे. अगर इस ट्रेड एक्टिविटी को फर्दर क्लासिफाई करना है तो इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड ये कंसेप्ट मैक्रो है और रिटेल ट्रेड ये कंसेप्ट माइक्रो है. होलसेल ट्रेड मीन्स क्या? मैन्युफैक्चरर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मैन्युफैक्चर किया हुआ गुड्स होलसेलर मैन्युफैक्चरर से परचेस करेगा और रिटेलर तक सप्लाई करेगा. सो अंडर होलसेल ट्रेड लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस किया जाता है और वो गुड्स स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को सेल किया जाता है. तो होलसेल ट्रेड इज द सिचुएशन which is comes in middle between manufacturing and retail market. Wholesaler is a middleman who purchase goods from manufacturer and supply the same goods to the retailer. So the main responsibility on wholesaler is to distribute the goods, to supply the goods. So wholesaler may called distributor, supplier, ये एक्टिविटी होलसेल ट्रेड में आती है. और रिटेल ट्रेड मीन्स होलसेलर से माल लेकर कंज्यूमर को माल बेचना. होलसेलर और कंज्यूमर के मिडल में एज अ मिडलमैन जो व्यक्ति काम करता है उसे रिटेलर कहा जाता है. रिटेल ट्रेड इज अ एक्टिविटी अंडर विच वी परचेस गुड्स from wholesaler and supply the goods to the consumer. अल्टीमेट कंज्यूमर को जो गुड्स की ज़रूरत होती है उस गुड्स को सप्लाई करने के लिए रिटेल ट्रेड होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स लेता है और उसी गुड्स को रीपैकिंग कर कर या उसी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर कर सप्लाई कर कर वो कंज्यूमर तक पहुंचाता है. सो रिटेल ट्रेड या रिटेलर यह कंसेप्ट होलसेल ट्रेड से थोड़ा छोटा है और होलसेल ट्रेड ये कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है. सो ट्रेड के 2 टाइप है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. ट्रेड के अंदर बाइंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाइंग ऑफ गुड्स की एक्टिविटी इंक्लूड है. सो बिजनेस के डेफिनेशन में ट्रेड, कॉमर्स
एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 एक्टिविटी इंक्लूड है। और एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इनटू द मीनिंग ऑफ बिजनेस। सो पहला कंसेप्ट जो बिजनेस के डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है वो था ट्रेड, और ट्रेड को हमने फर्दर 2 भागों में क्लासिफाई किया, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अगर बिजनेस के डेफिनेशन में हम लोग और फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो बिजनेस में इंक्लूड है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। मतलब क्या? रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना और वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करना, यह पूरी एक्टिविटी प्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। मीन्स एवरी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैन बी प्रोडक्शन, बट एवरी प्रोडक्शन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सारा मैन्युफैक्चरिंग ये प्रोडक्शन के अंतर्गत इंक्लूड है, बट सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जीएसटी एक्ट के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन और इसको समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी एक्टिविटी को हम प्रोडक्शन कहें और कौन सी एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहें। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? जैसे कि इस लाइन में बोला हुआ है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंक्लूड है, परंतु सारी एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह सकते हैं। मीन्स प्रोडक्शन, एवरी प्रोडक्शन इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर है कि कौन सी एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहें और कौन सी एक्टिविटी को हम प्रोडक्शन कहें। इसलिए इसे फर्दर क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर कोई गुड्स मैं नेचर से एक्सट्रैक्ट करता हूं, प्रकृति से हमें कोई गुड्स प्राप्त होता है, तो उस गुड्स को प्रकृति से प्राप्त करने की एक्टिविटी को हम कहेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस। वो होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को प्रकृति से प्राप्त करना, यह एक्टिविटी प्रोडक्शन है। इसके पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के थ्रू कॉटन, व्हीट या अदर जो फूड ग्रेन्स है या फ्रूट्स है या अदर नेचुरल रिसोर्सेस जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के थ्रू हमें मिलते हैं, यह पूरी एक्टिविटी प्रोडक्शन है। परंतु हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह सकते। एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हमें रॉ मटेरियल मिलता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के बाद हम रॉ मटेरियल नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्रकृति की देन है कि थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। सो इन रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करना यानी प्रोडक्शन एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह सकता हूं। एनीथिंग विच इज रिसीव्ड फ्रॉम नेचर, एनीथिंग विच इज रिसीव्ड फ्रॉम नेचर एज रॉ मटेरियल is called production. Anything which is received from nature as raw material is called production. Like agriculture activity is a production activity. Agriculture activity is not a manufacturing activity. We can make difference here in between manufacturing activity and production activity. What is the difference between manufacturing activity and what is the difference between manufacturing activity and production activity? That is well defined here. As agriculture activity is a production activity, it is not manufacturing activity. There is a difference between production and manufacturing. If we produce wheat, rice, etc. from agriculture activity, then it is called production.
not manufacturing. Production of tea, coffee, tobacco, etc. are the example of production. This activity is not called manufacturing. Any raw material extracted from earth or from nature is called production. स्टूडेंट्स, जितनी भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है उन गुड्स को लगने वाला रॉ मटेरियल या तो हमें अर्थ से मिलता है या नेचर से मिलता है। हमारे आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज चल रही है उन फैक्ट्रीज के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरी ऑन है, उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जो रॉ मटेरियल्स है वो सारे रॉ मटेरियल्स ज़मीन से यानी अर्थ से मिले हैं या नेचर से मिले हैं। आप अपने आसपास जितने भी प्रोडक्ट्स देखते हैं वो प्रोडक्ट्स कोई ना तो कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड होकर आए हैं और उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जो रॉ मटेरियल इनपुट किया गया था वो रॉ मटेरियल हमें नेचर से मिला है। सो नेचर से जो रॉ मटेरियल हमें मिला है दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। परंतु उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना मीन्स बाय द यूज ऑफ मशीनरी, बाय द यूज ऑफ एनर्जी, पावर, लेबर। अगर हम रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग कर कर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। सो प्रोडक्शन ये प्राइमरी कंसेप्ट है और मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी कंसेप्ट है। प्रोडक्शन इज प्राइमरी कंसेप्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इज सेकेंडरी कंसेप्ट। Here is production is primary concept and manufacturing is secondary concept. Production provide raw material for manufacturing means production करने के बाद हमें raw material प्राप्त होता है और उस raw material को further process करना फैक्ट्रीज में, यह एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। सो एग्रीकल्चर एक्टिविटी या कोई माइनिंग एक्टिविटी है जिसके थ्रू माइंस से हम नेचर से कोई गुड्स हम हासिल कर रहे हैं, या अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट्स हमें नेचर से मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स को नेचर से एक्सट्रैक्ट करना, ये एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी को हम फर्दर क्लासीफाई और कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है। सो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंस को दूर करने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, लाइक मिनरल्स एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ लाइक आयरन, स्टील, कॉपर, गोल्ड, कोल etc आर प्रोडक्शन। अगर हम ज़मीन में माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू कुछ मिनरल्स प्राप्त करते हैं, रॉ मटेरियल्स जैसे कि आयरन, स्टील, कॉपर, गोल्ड, कोल, यह सारी एक्टिविटी प्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। हाँ, गोल्ड को माइन से निकालने के बाद गोल्ड से ज्वेलरी बनाना, यह एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। जमीन से आयरन और स्टील को निकालना या कॉपर को निकालना और आयरन, स्टील और कॉपर से कोई प्रोडक्ट बनाना, यह एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। जमीन से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना, स्टील एक्सट्रैक्ट करना या जमीन से कॉपर को हमें प्राप्त करना, ये रॉ मटेरियल है, ये प्रोडक्शन है। परंतु कॉपर से कॉपर के प्रोडक्ट बनाना या गोल्ड से ज्वेलरी बनाना, गोल्ड से ज्वेलरी बनाने की एक्टिविटी, यह मैन्युफैक्चरिंग है। वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी को अगर फर्दर क्लासीफाई करें तो ज़मीन से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनको अगर हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दैट एक्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी। मीन्स हम ये नहीं बोलेंगे कि पेट्रोल को हमने मैन्युफैक्चर किया। पेट्रोल मैन्युफैक्चर नहीं होता है, पेट्रोल यह प्रोडक्शन एक्टिविटी है। जमीन से अगर हमें पेट्रोल प्राप्त होता है तो पेट्रोल को जमीन से निकालना, उस एक्टिविटी को हम प्रोडक्शन कहेंगे। ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर,
नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एलपीजी गैस के सिलेंडर्स, इनको ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनके सिलेंडर्स या एलपीजी गैस, इनके सिलेंडर्स को रिफिल कर कर हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए इनको यूज़ करते हैं। अगर हम नेचर से ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या एलपीजी गैस ये प्राप्त कर रहे हैं तो यह एक्टिविटी प्रोडक्शन है, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहेंगे। ऑक्सीजन गैस को नेचर से प्राप्त करना और उस ऑक्सीजन गैस को प्यूरिफाई कर कर सिलेंडर में फिलअप करना, यह एक्टिविटी प्रोडक्शन से मैन्युफैक्चरिंग तक की एक्टिविटी है। सो नेचर से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, एलपीजी गैस मिल रही है, यह एक्टिविटी प्रोडक्शन है। उसी तरह से एक और एग्जांपल है स्टोन ऑफ मार्बल, ग्रेनाइट, कोल, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइन इज प्रोडक्शन। अगर हमने माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू मार्बल, ग्रेनाइट, ये स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट किया है तो ये स्टोन को माइन से निकालना यह प्रोडक्शन है। बट इन स्टोन की फर्दर कटिंग कर कर मार्बल के टाइल्स बनाना या ग्रेनाइट के टाइल्स बनाना, यह एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब जमीन में से मार्बल का पत्थर निकालना यह प्रोडक्शन है, बट उस पत्थर को कट कर कर मार्बल के टाइल्स बनाना यह एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। नेचर से ऑक्सीजन प्राप्त करना यह एक्टिविटी प्रोडक्शन है, बट उस ऑक्सीजन गैस को ऑक्सीजन सिलेंडर में फिलअप करना यह मैन्युफैक्चरिंग है। पेट्रोल एंड डीजल जमीन से निकालना यह प्रोडक्शन है, बट पेट्रोल एंड डीजल को प्यूरिफाई कर कर उसे मार्केट में सप्लाई करना, उस पेट्रोल एंड डीजल को प्यूरिफाई करने की प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। सो बहुत स्लाइट डिफरेंस है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत। जो एक्टिविटी में नेचर का एलिमेंट है, नेचर से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक्टिविटी को हम प्रोडक्शन कहेंगे। बट नेचर से प्राप्त करने के बाद वो प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में यूज़ किया और उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में हमने कन्वर्ट किया, उस एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चर। अब यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटी मैन्युफैक्चर कहलाती है। मैन्युफैक्चरिंग यानी क्या? मैंने जैसे पहले बताया कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस है। सो फिर मैन्युफैक्चरिंग यानी क्या? मैन्युफैक्चरिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट in any manner that result in emergence of new product having a distinct name, distinct character and distinct use। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स अ प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पर की जाने वाली एक प्रोसेस है। उस रॉ मटेरियल पर प्रोसेस कर कर हमें फिनिश गुड्स प्राप्त होगा। उस फिनिश गुड्स का एक डिस्टिंक्ट नेम होगा, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और उसका एक डिस्टिंक्ट यूज होगा। मतलब प्रोडक्शन करने के बाद जो रॉ मटेरियल हमें प्राप्त होता है, उस रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और जो फिनिश गुड्स बनेगा उस फिनिश गुड्स का नाम रॉ मटेरियल के नाम से अलग होगा, उसकी आइडेंटिटी अलग होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगी और उसका यूज अलग होगा। जैसे नेचर से हमने कोई रॉ मटेरियल प्राप्त किया तो उस रॉ मटेरियल को हमने फैक्ट्री के अंदर बाय द यूज ऑफ मशीनरी और लेबर के थ्रू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, तो रॉ मटेरियल की आइडेंटिटी लॉस्ट होनी चाहिए और एक नया प्रोडक्ट बनना चाहिए।
उस नए प्रोडक्ट का डिस्टिंक्ट नेम हो, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो और डिस्टिंक्ट यूज हो, इस एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, एनर्जी यानी पावर और लेबर इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है बाय द यूज ऑफ मशीनरी, एनर्जी यानी पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, या लेबर के थ्रू हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यह पूरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में बी विथ एड ऑफ पावर और विदाउट एड ऑफ पावर। दो प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक विथ एड ऑफ पावर, मतलब एनर्जी रिसोर्सेज को यूज कर कर, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर कर मशीनरी के थ्रू गुड्स को मैन्युफैक्चर करना। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मशीनरी के थ्रू नहीं होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लेबर करते हैं। लेबर के मैनुअल वर्क से, ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर कर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। सो लेबर का स्किल, लेबर का नॉलेज और लेबर जो एफर्ट्स लेते हैं, उस एफर्ट्स के थ्रू रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, यानी लेबर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। और लेबर को सब्स्टिट्यूट टेक्नोलॉजी है। अगर लेबर की जगह मशीनरी का उपयोग किया जाए और उस मशीनरी के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग की जाए, तो वो विथ एड ऑफ पावर मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। सो मैन्युफैक्चरिंग ये कंसेप्ट समझने के लिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग इस कंसेप्ट को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, and that finished goods must have a distinct name, distinct characteristics and distinct use. रॉ मटेरियल की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जानी चाहिए और रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनना चाहिए, जो फिनिश गुड्स का अपना अलग नाम हो, वो फिनिश गुड्स का अपना अलग यूज हो, जो कि रॉ मटेरियल से अलग हो, उस फिनिश गुड्स की अपने एक अलग अस्तित्व हो, अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो। यह एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। आफ्टर इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, द ओरिजिनल एंड आइडेंटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट बी लॉस्ट। द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट बी लॉस्ट। लॉस्ट मीन्स रॉ मटेरियल की आइडेंटिटी खत्म हो जानी चाहिए। And a new distinct product must come into existence. And after manufacturing, whatever finished goods which is manufactured, that finished goods must have a distinct characteristics. A distinct product must come into existence, which have different characteristics, different name, and distinct identity into the market. Then such activity is called manufacturing. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रॉ मटेरियल हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनपुट किया है, वो रॉ मटेरियल की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जानी चाहिए, रॉ मटेरियल की पहचान नष्ट हो जानी चाहिए, और जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसका एक अलग नाम हो, उसकी अलग एक पहचान हो, उसकी अलग एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसका यूज अलग हो। एक एग्जांपल दूंगा। अगर मान लो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हम एज अ रॉ मटेरियल पाइप इनपुट कर रहे हैं, पाइप, और वो फैक्ट्री में उस पाइप के दो टुकड़े कर कर दो पाइप बनाकर बेच रहे हैं। लाइक हम स्टील के बड़े बड़े पाइप होते हैं, तो उन स्टील के पाइप को कटिंग करने के लिए एक प्रोसेस एक फैक्ट्री में की जा रही है। तो यहां पर जो स्टील का पाइप है, उस पाइप को
बाय द यूज ऑफ मशीनरी कट कर कर हम पाइप बेच रहे हैं। मतलब बड़े साइज के स्टील के पाइप को कट कर कर छोटे साइज के पाइप बेच रहे हैं। इस एक्टिविटी में हमने रॉ मटेरियल इनपुट किया पाइप और हमने सेल किया पाइप। यहां पर रॉ मटेरियल का नाम भी पाइप है और फिनिश गुड्स का नाम भी पाइप है। मतलब एक फैक्ट्री है जहां पर बड़े जो स्टील के पाइप्स होते हैं उन पाइप को छोटे आकार में काट कर बेचा जाता है। और वो बड़े आकार के स्टील के जो पाइप है वो पाइप को कट करने के लिए कटिंग मशीन्स ये फैक्ट्री में लगाई गई है। ये फैक्ट्री ओनली कटिंग का काम करती है, बट यहाँ पर इनपुट है पाइप का और ये फैक्ट्री सेल कर रही है पाइप। ये एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल पाइप है और फिनिश गुड्स भी पाइप है। यह ओनली एक सिंपल जॉब वर्क है। इस एक्टिविटी को हम कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं कहेंगे, जहां पर हम बड़े पाइप के टुकड़ों को छोटे पाइप के टुकड़े में कन्वर्ट कर कर बेच रहे हैं। यहां पर रॉ मटेरियल का आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हुआ है। रॉ मटेरियल की आइडेंटिटी लॉस्ट होना यानी गोल साइज के बड़े पाइप अगर हम फैक्ट्री में इनपुट करते हैं और उसे प्रेस कर कर उसको साइज और शेप हम चेंज कर दें। अगर गोल पाइप को हम चौकोनी या त्रिकोणी साइज में कुछ स्ट्रक्चर बनाकर बेचे तो यहां पर पाइप का इनपुट हुआ है, बट जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो रीसाइज हो चुका है। तो पाइप से पाइप बनाना ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बट पाइप से अगर हम कोई रीसाइज कर कर दूसरा प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं तो वो एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बाय द यूज ऑफ मशीनरी बड़ी लकड़ी वुड, उस बड़ी लकड़ी को कट कर कर हम छोटी लकड़ी बनाकर बेच रहे हैं। एक बड़ा वुड का टुकड़ा है, उस टुकड़े को हम कटिंग कर कर छोटे छोटे वुड के टुकड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हमने रॉ मटेरियल इनपुट किया वुड और फिनिश गुड्स बेचा वुड। ये एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिंपल सा जॉब वर्क है। इस एक्टिविटी में इनपुट हुआ वुड यानी लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, उसको ओनली कट कर कर हमने लकड़ी के छोटे टुकड़े बनाए और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हमने बेचे। तो इनपुट हुआ लकड़ी और फिनिश गुड्स बना लकड़ी। तो रॉ मटेरियल का नाम चेंज नहीं हुआ। इस एक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहेंगे। परंतु अगर किसी फैक्ट्री में वुड इनपुट होता है एज अ रॉ मटेरियल, लकड़ी को इनपुट करने के बाद उस लकड़ी से टेबल या कुर्सी बनाई जाती है और टेबल या चेयर बनाकर हम लकड़ी का टेबल या लकड़ी का चेयर बेच रहे हैं, तो यह एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब रॉ मटेरियल वुड हमने इनपुट किया, लकड़ी, उस लकड़ी को कट कर कर हमने टेबल बनाया, चेयर बनाई और वो टेबल और चेयर को बेचा, तो यहां पर रॉ मटेरियल का नाम बदल गया। रॉ मटेरियल का नाम था वुड, फिनिश गुड्स का नाम है टेबल एंड चेयर। बहुत छोटा सा फर्क है, बट ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है और कौन सी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इनपुट हुआ वुड और सेल हुआ टेबल एंड चेयर, ये एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। सो अ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट
must comes into the existence, which have different characteristics, different name and different market identity. That activity is called manufacturing activity. While production is the primary activity and manufacturing is the secondary activity. जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, प्रोडक्शन यह रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटी है, यानी नेचर से अगर हम वुड प्राप्त करते हैं तो यह एक्टिविटी प्रोडक्शन है। बट उस वुड से, उस लकड़ी से अगर हम टेबल या चेयर बनाते हैं तो वो एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। सो प्रोडक्शन हैज़ द लार्जर स्कोप देन मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन का स्कोप बहुत लार्जर लेवल पर है और मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप प्रोडक्शन के अंतर्गत इंक्लूड है। सो ऑल मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन, बट ऑल प्रोडक्शन इज नॉट कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। The whole activity of conversion of input into output is called production. Manufacturing involves different processes. By addition of all processes, raw material converted into finished goods. अब एक और नया कंसेप्ट है, प्रोसेस यानी क्या। बहुत सारी प्रोसेसेस को ऐड करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग होता है, और प्रोसेसेस और मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस होती है उसके लिए प्रोडक्शन जरूरी होता है। तो तीन बातें हैं, पहले प्रोडक्शन की प्रोसेस, देन प्रोडक्शन के थ्रू रॉ मटेरियल बनाना, और उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनपुट करना, प्रोसेस कर कर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। इन सारी प्रोसेसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट प्रोडक्शन के कंसेप्ट में इंक्लूड है। सो प्रोडक्शन का स्कोप बड़ा है और मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप छोटा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पे डिपेंड है। विदाउट प्रोडक्शन वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है वो रॉ मटेरियल हम प्रोडक्शन प्रोसेस से ही जनरेट करते हैं। सो आई थिंक सो ये एग्जाम्पल आपको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ कि नेचर ने बहुत सारी हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं। उन नेचुरल रिसोर्सेज में से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि नारियल का झाड़ है, कोकोनट का ट्री है। कोकोनट के ट्री का बीज हमने जमीन में लगाने के बाद कोकोनट का झाड़ बड़ा हुआ, वो ट्री पर कोकोनट लगे, वो नारियल के ऊपर जो एक कवर होता है वो नारियल के ऊपर का कवर निकाला। उस नारियल के ऊपर के कवर से हमने रस्सी बनाई। उस रस्सी से हमने हमारे घर में जो पायदान होता है ना, वो पायदान बनाया। नारियल के ऊपर जो एक कवर होता है, उस कवर से हमने ब्रश बनाया, या और भी और अदर प्रोडक्ट्स उस नारियल के ऊपर के कवर से बनते हैं। फिर नारियल का कवर निकालने के बाद उसके अंदर एक लकड़ी का कड़क भाग आता है। उस लकड़ी के भाग को तोड़ने के बाद उसके अंदर नारियल का खोबरा निकलता है। तो उस नारियल के खोबरे के ऊपर जो लकड़ी का कड़क भाग होता है, उस लकड़ी के कड़क भाग को तोड़कर उसे मशीन में डालकर अगर हम बारीक उसका लकड़ी का पाउडर बना दें और उस लकड़ी के पाउडर में फेविकॉल और केमिकल मिक्स कर दे और एक सतह पे फैला दे, तो उस नारियल की लकड़ी से प्लाईवुड बनता है। अब उस नारियल की लकड़ी के अंदर जो खोबरा निकला, उस खोबरे से खोबरे का तेल बनता है, और उस खोबरे के अंदर
जो नारियल का पानी होता है वो पानी मेडिसिन पर्पस यूज होता है, उसमें ग्लूकोज होता है। सोचिए कि नेचर से हमें नारियल का झाड़ मिला, नारियल के झाड़ पर नारियल लगे, उस नारियल के ऊपर का जो कवर होता है उस कवर को हमने उससे एक्सट्रैक्ट किया। उस नारियल के ऊपर के जो कवर होते हैं उस कवर से हमने नारियल की रस्सी बनाई, नारियल की रस्सी से पायदान बनाया, नारियल के ऊपर के कवर से ब्रश बनाए, और नारियल के अंदर जो लकड़ी का कड़क भाग होता है उसको हमने मशीन में डालकर उसको पाउडर में कन्वर्ट कर कर उसमें फेविकॉल और केमिकल मिक्स कर कर हमने उससे प्लाईवुड बनाया। उसके अंदर जो खोबरा होता है उस खोबरे से हमने खोबरे का ऑयल बनाया। उसके अंदर जो पानी होता है उस पानी से हमने ग्लूकोज बनाया। यह पूरी एक्टिविटी प्रोडक्शन प्लस मैन्युफैक्चरिंग की है। नेचर से नारियल का प्रोडक्शन करना यह रॉ मटेरियल है, बट नारियल से नारियल की रस्सी बनाना या नारियल के लकड़ी से प्लाईवुड बनाना या नारियल के खोबरे से खोबरे का ऑयल बनाना या नारियल के पानी से ग्लूकोज बनाना या मेडिसिन पर्पस नारियल के पानी को यूज करना, यह एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटी के थ्रू कॉटन प्रोड्यूस किया। कॉटन प्रोड्यूस करना यह प्रोडक्शन एक्टिविटी है, बट कॉटन को कॉटन की बेल में कन्वर्ट करना, फिर कॉटन की बेल से कॉटन के थ्रेड्स यानी कॉटन के धागे बनाना, कॉटन के धागे से कॉटन का कपड़ा बनाना, कॉटन के कपड़े से कॉटन के रेडीमेड कपड़े बनाना, यह एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। आई थिंक ये दो एग्जाम्पल्स है, आपको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गया होगा। फर्दर प्रोसेस में मैंने अभी बताया कि बहुत सारी प्रोसेसेस को अगर हम ऐड करें तो वो एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। प्रोसेसेस इंक्लूड्स इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज द बंच ऑफ प्रोसेसेस। एक सिंगल प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसेसेस होती है। उन सारी प्रोसेसेस को ऐड कर ले तो उस प्रोसेसेस के बंच को हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। उदाहरण के तौर पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हमने गन्ना प्रोड्यूस किया, शुगर कैन। उस गन्ने को हमने शुगर फैक्ट्री के अंदर एज अ रॉ मटेरियल इनपुट किया। उस गन्ने से गन्ने का रस निकालना पहली प्रोसेस है। गन्ने के रस में से गन्ने का अल्कोहल बाजू में निकालना सेकंड प्रोसेस है। फिर प्योर गन्ने के रस को हम शुगर में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले खंडसरी शुगर बनती है, मतलब जो मोटी शक्कर होती है उसे हम खड़ी शक्कर कहते हैं। उस खंडसरी शुगर को फर्दर प्रोसेस करने के बाद उससे हम नेचुरल शुगर यानी जो सामान्य शक्कर है वो हम बनाते हैं। गन्ने से गन्ने का रस बनाना, रस में से अल्कोहल बाजू में निकालना, उस रस को फर्दर प्रोसेस कर कर खंडसरी शुगर बनाना, खंडसरी शुगर बनाने के बाद उससे शुगर बनाना, ये अलग अलग प्रोसेसेस है। इन सारी प्रोसेसेस को ऐड कर ले तो हम बोलेंगे ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है शुगर मैन्युफैक्चरिंग करने की। बट खेत में एग्रीकल्चर एक्टिविटी के थ्रू गन्ना प्रोड्यूस करना, ये एक्टिविटी प्रोडक्शन है। उस प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इनपुट हुआ और उस गन्ने से शक्कर बनाना, ये एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। अब यहां पर एक सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग प्रोड्यूस, बाय प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट आर द आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
अगर कोई मेन प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उस समय पर कोई बाय प्रोडक्ट बनता है तो उस बाय प्रोडक्ट को भी हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। कोई प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट बनता है तो उस जॉइंट प्रोडक्ट को भी हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो उस प्रोड्यूस्ड गुड्स को भी हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। मतलब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई फैक्ट्री में रॉ मटेरियल इनपुट करने के बाद फिनिश गुड्स बनाने के बीच में अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है, ऑटोमेटिकली बनता है, तो उसे हम प्रोड्यूस कहेंगे। अगर वो प्रोडक्ट मेन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में बनता है और उस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से अलग कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे बाय प्रोडक्ट। और मैन्युफैक्चर करने के बाद अगर 2 या 3 प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं तो उनको हम कहेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो फाइनल गुड्स हमारे हाथ में आता है उसे हम कहेंगे फाइनल प्रोडक्ट। ये चारों कंसेप्ट अलग अलग है। जैसे मैंने बताया कि अभी शुगर कैन है, गन्ना है, उसको शुगर फैक्ट्री में इनपुट किया गया, तो शुगर कैन में से अल्कोहल बाजू में निकालना, वो अल्कोहल ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होता है, उसे हम प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट बोलेंगे। उसे कंपल्सरी मैन्युफैक्चरिंग का वेस्टेज मानकर हमें उसे अलग करना होगा। शुगर के मैन्युफैक्चरिंग में गन्ने के रस से अल्कोहल निकालना, यह एक्टिविटी प्रोड्यूस एक्टिविटी है। अब गन्ने के रस से अल्कोहल बाजू में निकालने के बाद उसी गन्ने के रस से खंडसरी शुगर बनना, यह बाय प्रोडक्ट है। और खंडसरी शुगर को फर्दर प्रोसेस कर शक्कर बनाना, यह फाइनल प्रोडक्ट है। मतलब अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कोई रॉ मटेरियल इनपुट किया जाता है तो कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, कुछ गुड्स बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ गुड्स जॉइंट प्रोडक्ट हो सकते हैं और कुछ गुड्स फाइनल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हम मार्केट में अगर सेल कर सके तो ये एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। एनी वेस्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में अगर कोई वेस्टेज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने के बाद बचा हुआ वेस्टेज अगर हम मार्केट में बेचते हैं तो जो वेस्टेज प्रोड्यूस होता है वो वेस्टेज भी मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, अगर वो वेस्टेज मार्केटेबल है तो। मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते समय कोई गुड्स वेस्ट हो गया या कोई वेस्टेज वहाँ पर तैयार हो गया, तो जो वेस्टेज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में तैयार होता है वो वेस्टेज को भी हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। अगर वो वेस्टेज मार्केट में सेल हो सकता है, मार्केट में सप्लाई हो सकता है, अगर वो वेस्टेज मार्केटेबल है तो वो वेस्टेज को भी हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। हाँ, अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते समय कोई वेस्टेज बनता है और उस वेस्टेज को हम मार्केट में बेच नहीं सकते हैं या उसके लिए कोई खरीदार अवेलेबल नहीं है या वो प्रोडक्ट हमारे एरिया में मार्केटेबल नहीं है, तो फिर वो वेस्टेज को वेस्टेज ही कहा जाएगा, वो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ यह नहीं कहा जाएगा। मतलब एक फैक्ट्री में कोई गुड्स बना, फाइनल गुड्स बना, फाइनल गुड्स बनाते समय कुछ वेस्टेज निकल गए, अगर वो वेस्टेज आप मार्केट में बेच सकते हैं तो उस फैक्ट्री से हमने 2 प्रोडक्ट बेचे, एक वेस्टेज बेचा और एक फाइनल प्रोडक्ट बेचा, दोनों प्रोडक्ट उस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। परंतु अगर उस फैक्ट्री में फाइनल प्रोडक्ट बनाते समय अगर कोई गुड्स वेस्टेज बोलकर निकलता है और वेस्टेज हम सेल नहीं कर पा रहे हैं या वो वेस्टेज बिकता नहीं है, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट बिकता है, तो हम फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ बोलेंगे, बट वेस्टेज जो सेल नहीं कर सकते हैं, जो मार्केटेबल नहीं है, वो वेस्टेज की मैन्युफैक्चरिंग की, ये हम नहीं कह सकते हैं।
बाय प्रोडक्ट इज द आउटपुट ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द फाइनल प्रोडक्ट। अगर फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस समय पर अगर कोई बाय प्रोडक्ट बनता है तो वो बाय प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, अगर वो बाय प्रोडक्ट मार्केटेबल है तो। इफ एनी टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड टुगेदर, then that final goods, that final products are called joint products। मतलब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर किए जाए और वो दोनों प्रोडक्ट एज अ फाइनल गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किए एक साथ में, तो उस प्रोडक्ट को हम जॉइंट प्रोडक्ट कहेंगे। असेंबलिंग एक्टिविटी को भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इंक्लूड किया गया है। कुछ असेंबलिंग को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है और कुछ असेंबलिंग को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहा जाता है। असेंबलिंग यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को असेंबल्ड कर कर एक नया प्रोडक्ट बनाना। असेंबलिंग इज आल्सो मैन्युफैक्चरिंग इफ आफ्टर असेंबलिंग any new product comes into existence which have distinct new name, distinct characteristics, distinct identity, separately known into the market, then that assembling is also called manufacturing। यहां पर कौन सी असेंबलिंग एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे और कौन सी असेंबलिंग एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहेंगे, यह समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ कार इज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। एक फैक्ट्री में कार बनाने के लिए जो पार्ट्स लगते हैं वो पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया गया, वो एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। पर जो कार बनाने के पार्ट्स है उसको असेंबलिंग कर कर कार बनाने का काम दूसरी फैक्ट्री में किया जाता है, तो कार के पार्ट्स को असेंबल्ड कर कर कार बनाना, यह एक्टिविटी भी मैन्युफैक्चरिंग है। कार के पार्ट्स को असेंबल्ड करके कार बनाना, यह एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ कार इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार इन अदर फैक्ट्री इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार। मतलब एक कंपनी है, उसकी एक फैक्ट्री में कार के पार्ट्स बन रहे हैं और दूसरी फैक्ट्री में उन कार के पार्ट्स को असेंबल्ड कर कर हम कार बना रहे हैं। ये दोनों एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। यहां पर कार का असेंबलिंग किया गया, वहां पर भी पहले कार के पार्ट्स इनपुट किए गए और कार बना के बेचा गया, तो कार का मार्केट में सेपरेट आइडेंटिटी है, डिस्टिंक्ट यूज है। इस एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। परंतु एक दूसरा एग्जाम्पल है जहां पर असेंबलिंग एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल में बताया गया कि एक बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने पहले बाइसिकल के पार्ट्स बनाए और वो बाइसिकल के पार्ट्स मार्केट में बेचे गए और वो बाइसिकल के पार्ट्स बाइसिकल के रिटेल शॉपकीपर के पास आए और बाइसिकल का रिटेल शॉपकीपर ने बाइसिकल के पार्ट्स को असेंबल कर कर बाइसिकल बनाकर बेचा। मतलब एक बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने बाइसिकल के पार्ट्स बनाए और वो साइकिल के जो पार्ट्स बने वो पार्ट्स उसने होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट के थ्रू रिटेलर्स को बेचा। ये एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है। परंतु रिटेलर ने उन बाइसिकल के पार्ट्स को असेंबल कर कर
बाइसिकल बनाकर अपनी दुकान से बेचा, वो एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो एक्टिविटी उसकी रिटेल शॉप की एक्टिविटी है। Manufacturing of parts of machinery is called manufacturing, while assembling of parts of machinery at site is not called manufacturing activity. किसी मशीन के पार्ट्स बनाना ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, बट उस मशीन को किसी साइट पर जाकर असेंबल करना ये एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इसमें बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बट यहाँ पर इन दोनों तीनों एग्जाम्पल का अलग अलग यूज़ और जिसका एक डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्टिंक्ट यूज़, ये तीन कंसेप्ट को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि कौन सी असेंबलिंग एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहें और कौन सी असेंबलिंग एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चरिंग न कहें। सो असेंबलिंग यह एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है, परंतु कब? जब असेंबलिंग करने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्रिएट करता है, तो वो एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सो असेंबलिंग जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, वेस्टेज। स्पेशल इसी लेक्चर के डिस्कशन में मैंने आप लोगों के साथ में ट्रेड यानी क्या, प्रोडक्शन यानी क्या, मैन्युफैक्चरिंग यानी क्या, इसके ऊपर डिस्कशन किया। अब अगला कंसेप्ट हम समझ कर लेते हैं, कॉमर्स यानी क्या। एड्स टू ट्रेड इज कॉल्ड कॉमर्स, मीन्स एडिशन टू ट्रेड इज कॉल्ड कॉमर्स। एडिशन टू ट्रेड मीन्स एनी एक्टिविटी which is incidental or ancillary, or which is directly or indirectly related to the trade, which provide facility to the trade, which provide facility to the manufacturing, is called commerce. Aids to trade is called commerce, means addition to trade is called commerce, which means any activity which is connected and related with trade, production or manufacturing is called commerce. Services provided by bank, insurance, transportation, warehousing, advertisement, salesman, marketing, packing, import, export, etc. are the commerce activity. कॉमर्स के अंदर इंक्लूड है बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज, सेल्समैनशिप, पैकिंग, रीपैकिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सभी सर्विसेज जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है, ट्रेड के लिए ज़रूरी है। तो ट्रेड, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इंसिडेंशियल और एंसिलरी सर्विसेज ज़रूरी है, उन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विसेज को हम कॉमर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। सो एड्स टू ट्रेड यानी एडिशन टू ट्रेड, एनी इंसिडेंशियल और एंसिलरी एक्टिविटीज directly or indirectly which is related with the trade, manufacturing or production is called commerce. The activity of buying, selling, supplying, distribution, especially on large scale, is called commerce. Buying activity, selling activity, supplying activity, distribution activity, इसे हम क्या कहते हैं? कॉमर्स। कॉमर्स इज द ब्रांच ऑफ बिजनेस। कॉमर्स ये बिजनेस का पार्ट है। It is connected with the exchange of goods and services. It includes all activities which directly or indirectly facilitate the exchange of goods and services.
किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिन सर्विसेज का उपयोग किया जाता है उन सर्विसेज को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स। जो सर्विसेज बिजनेस को हेल्प करती है, जो सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने के लिए बिजनेस के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करती है, उन सर्विसेज को हम क्या कहेंगे? कॉमर्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वेयरहाउसिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, सेल्समैनशिप सर्विसेज, मार्केटिंग, पैकिंग, रीपैकिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारी सर्विसेज कॉमर्स के अंतर्गत आती है। बिजनेस के डेफिनेशन को समझते समय एक और डेफिनेशन हमें समझना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर स्किल, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, स्पेशल नॉलेज, ऑक्यूपेशन, प्रैक्टिस और वोकेशन requiring mastery of a complex set of knowledge and skill through formal education or practical experience. Generally, service provider engage into professional activity. A systematic set of knowledge या कोई स्किल सेट का उपयोग कर हम प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं। जनरली सर्विस प्रोवाइडर प्रोफेशनल कहलाते हैं और सर्विस प्रोवाइडर प्रोफेशन करते हैं। उनके पास स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज होता है, स्पेसिफिक उनके पास ट्रेनिंग होती है, उनका एक वोकेशन होता है, उनके पास एक क्वालिफिकेशन होता है और नॉलेज, क्वालिफिकेशन, स्किल सेट का उपयोग कर अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाए तो उन सर्विसेज को भी हम प्रोफेशन कहेंगे। प्रोफेशन को हम दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन और अनऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन। ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन मीन्स जहां पर एक स्पेसिफिक नॉलेज का सेट होता है, पर्टिकुलर ट्रेनिंग के थ्रू कोई स्पेसिफिक नॉलेज गेन किया जाता है और उस नॉलेज का उपयोग कर स्किल सेट के थ्रू अगर हम कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे हम ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन कहेंगे। उसका डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन गिवन बाय अ प्रोफेशनल बॉडी लाइक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस, etc. Example, practice of a chartered accountant is profession which is governed by Institute of Chartered Accountants of India. मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पर्टिकुलर ट्रेनिंग देकर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का क्वालिफिकेशन प्राप्त कर अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज दे रहे हैं तो इस प्रोफेशन को हम ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन कहेंगे। दूसरा एग्जांपल है कि अगर कोई डॉक्टर है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद कोई डॉक्टर मेडिकल सर्विसेज अगर दे रहे हैं तो उस प्रोफेशन को हम ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन कहेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन मीन्स जिस प्रोफेशन में किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है बट पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत होती है। A profession which need not require any qualification but require a special skill and practice. Develop the set of professional knowledge is called unorganized profession. Example, dry cleaner services, shoe polish services, beauty parlor services, etc. सो जिन प्रोफेशन में ओनली स्किल सेट की रिक्वायर है, स्किल सेट प्लस नॉलेज, किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है,
उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन कहेंगे। और ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन यानी जहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्वालिफाइड पर्सन अगर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन कहेंगे। सो प्रोफेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज, कॉमर्स की सर्विसेज, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, यह पूरी एक्टिविटी को अगर हम जॉइंटली देखें तो इस एक्टिविटी को हम कहेंगे बिजनेस। सो बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन हमने बहुत डीप मैनर में यहाँ पर देखा कि कौन सी एक्टिविटी बिजनेस है, कौन सी एक्टिविटी बिजनेस नहीं है। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट की प्रोविजन में देयर मस्ट बी अ person must carry on business. In that business, trade, commerce, manufacturing, production and profession activity is included. ये जो अलग अलग टर्म्स बिजनेस के डेफिनेशन में यूज़ हुए हैं, इन टर्म्स को डिटेल में समझ कर लेना और इसकी लीगल प्रोविज़न को समझ कर लेना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में हमने बिजनेस के डेफिनेशन को एक डीप में लीगल प्रोविजंस के साथ यहाँ पर क्लासीफाई किया है। और मुझे लगता है क्या ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और प्रोफेशन, इनको मैंने अलग अलग एग्जांपल्स देकर आप लोगों को यहाँ पर सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। फर्दर अगर कोई डिस्कशन, फर्दर कोई क्वेरीज आपकी हो तो आप ज़रूर बताइए। अगेन कुछ और बेसिक टर्म्स अभी बाकी है, उन बेसिक टर्म्स को डिफाइन किए बगैर हम लोग जीएसटी को नहीं समझ सकते हैं। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को समझने के लिए मैं अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको और कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा।